Hello students, good morning. Welcome back to our online class with Best English School. I hope you all are very well and doing your homework daily. If you are not doing your homework, then please start to do your homework daily. So, in last lecture, we read our story from Unit 3. Its name is The Enormous Turnip. The Enormous Turnip. Today we are going to discuss the question answer of the story. So everyone please take your textbook with you. We are going to start our question answer. Let's start. Number 1, you can see here, what did the old man plant? What did the old man plant? Answer is, the old man planted some turnip seeds. The old man planted some turnip seeds. स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, ठीक है बच्चों। आप क्या करोगे, स्पेलिंग को अच्छे से याद करना और उसको ध्यान से लिखना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नंबर 2. Why is difficult for the old man to pull up the turnip? Why was it difficult for the old man to pull up the turnip? अब ओल्ड मैन को जो टर्नअप था वो ज़मीन में से निकालने में डिफ़िकल्टी हो रही थी। क्यों डिफ़िकल्टी हो रही थी? सो आंसर इज, इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल द टर्नअप बिकॉज इट वॉज इनॉमस. इट वॉज इनॉमस. क्यों उसको डिफ़िकल्टी हो रही थी? क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था. स्पेलिंग क्या है इनॉमस की? ENORMOUS. सो रिमेंबर इट. नाउ नंबर 3, who helped him to pull up the enormous turnip? Who helped him to pull up the enormous turnip? So answer is, an old woman, a boy and a girl. किस किस ने हेल्प की थी उसको? तो an old woman, a boy and a girl helped him to pull up the enormous turnip. देखो you can see here, आपको क्वेश्चन दिया है, उसी में से आंसर इजीली आप लिख सकते हो. वो की जगह क्या लिखना है आपको? जिसने हेल्प की है उसी का. तो किस किस ने हेल्प की थी? an old woman, then a boy and a girl. इन तीनों ने हेल्प की थी, तो इन तीनों का नाम लिखा, उसके बाद helped him to pull up the enormous turnip. वो हमने क्वेश्चन में से लिख लिया, ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना. नाउ नंबर 4 इज, who ate the enormous turnip? enormous turnip जो बड़ा सा फ्रूट जैसा था, वो किसने खाया था? The old man, the old woman and the boy and the girl ate the enormous turnip. देखो आपको यहाँ फिर से वो दिया हुआ है, तो वो की जगह आपको किसने खाया है वो लिखना है. तो किस किसने खाया था? The old man, the old woman, the boy and the girl. उसके बाद क्वेश्चन में से ate the enormous turnip. Okay? Now again we will read. Number 1 is, what did the old man plant? Answer is, the old man planted some turnip seeds. Then why was it difficult for the old man to pull the turnip? So it was difficult for the old man to pull the turnip because it was enormous. Then who helped him to pull up the enormous turnip? An old woman, a boy and a girl helped him to pull up the enormous turnip. Then who ate the enormous turnip? The old man, the old woman, the boy and the girl ate the enormous turnip. Now come to the number 5. Number 5 is, name and draw 4 vegetables that have to be pulled out from the earth. Now name them in your language. यानी हमें ऐसे 4 वेजिटेबल लिखना है जो ज़मीन के अंदर होते हो. कौन कौन से होते हैं? तो यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, देयर इज़ अ पोटैटो, जिंजर,
carrot and radish. Potato, potato. You can see here. Then ginger, ginger, ginger. Then carrot, carrot, and radish, radish. These 4 वेजिटेबल्स कहाँ होती है? ज़मीन के अंदर. तो इसको हम ज़मीन के अंदर से बाहर निकालते हैं. आपको स्पेलिंग इसकी लर्न करनी है. नाउ कम टू द नंबर 6. लेट्स गो शॉपिंग. अरे वाह, शॉपिंग करना तो हम सबको पसंद है. सो लेट्स गो शॉपिंग. हाउ मैनी वेजिटेबल्स कैन यू फाइंड इन द मेज? ड्रॉ अ सर्कल अराउंड ईच वर्ड. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. तो दिस क्वेश्चन यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक. सो एवरीवन प्लीज टेक योर टेक्स्ट बुक विथ यू. यू कैन सी देयर इज अ बॉक्स. और आपको देखो एक एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है? पोटैटो, POTATO. आफ्टर इट यू कैन सी हियर पीस, PEASE. देन कैरोट, CARROT, कैरोट. फिर ओनियन, ONION, ओनियन. सो इस तरह से आपको क्या करना है? वेजिटेबल्स के नेम हैं उस पर सर्कल करना है और उसकी स्पेलिंग लर्न करना है. नाउ अ गेम ऑफ अपोजिट्स. चलो हम अपोजिट्स देखते हैं. पुल, PULL, पुल. इट्स अपोजिट इज पुश, PUSH, पुश. देन ब्लैक, BLACK, ब्लैक. इट्स अपोजिट इज वाइट, WHITE, वाइट. देन ट्रू, TRUE, true. Its opposite is false, FALSE. Then right, RIGHT, right. Wrong, WRONG, wrong. Pull, push, black, white, true, false, right, wrong. Now come to the other. Far, FAR, far. Near, NEAR, near. Then good, GOOD, good. Its opposite is bad, BAD, bad. Then dark, DARK, dark. Bright, BRIGHT, bright. Then up, UP, up. तो down, DOWN, down. Then old, OLD, old. New, NEW, new. Far, near, good, bad, dark, bright, up, down, old, new. Let's again we will read. Pull, push. Black, white. True, false. Right, wrong. Far, near, good, bad, dark, bright, up, down, old, new. सो ये अपोजिट थे. देखो पुल मीन्स क्या होता है? जब भी आप कोई शॉप पे जाते हो तो वहाँ पे उसका गेट होता है, वहाँ पे लिखा होता है पुल या फिर पुश. पुल मीन्स क्या होता है? खींचना. और पुश मीन्स धक्का देना. ठीक है, तो अब ध्यान रखना. नाउ कम टू द नंबर 9. नेम 4 वेजिटेबल्स यू एट लास्ट वीक. राइट देयर नेम्स हियर. देखो आपको उसका एक प्लूरल और सिंगुलर दोनों लिखना है. वन मीन्स कैरोट तो कैरोट्स, टर्नअप टर्नअप्स, ऑनियन ऑनियंस, पोटैटो पोटैटोस, टोमेटो टोमेटोस. देन वन वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज डिफरेंट देन द अदर. चूज द ऑड वन आउट. और जो होगा वो आपको चूज करना है. तो देखो टर्नअप, पोटैटो, टोमेटो, सनफ्लावर, ब्रिंजल, कैरट. सारे वेजिटेबल्स के नेम है लेकिन एक फ्लावर का नेम है. कौन सा? सनफ्लावर. तो कौन सा आउट हुआ? ऑड कौन सा हुआ? सनफ्लावर. देन काउ, हॉर्स, फॉक्स, kangaroo, मेल. सो दिस वन इज ऑड. देन बनियान, नीम, पीपल, मैंगो, स्नेक, एप्पल. सो स्नेक इज ओड. देन रोज, लिली, सनफ्लावर, लोटस, कॉलीफ्लावर. कॉलीफ्लावर इज odd. Then peacock, parrot, lizard, crow, woodpecker. So lizard and woodpecker is odd. Why? Because these two are a insect. Then say aloud means आपको loudly
बोलना है। पुल, फूल, पुट, कुल, रूट, सूट, कट, बट, सट। PULL पुल, FULL फुल, PUT पुट, COOL कुल, ROOT रूट, SHOOT सूट, CUT कट, BUT बट, SHUT सट। देखो आपको क्वेश्चन नंबर 10 में क्या था, आपके जो दिए हुए हैं उसमें से जो ऑड है यानी उससे मैच नहीं करता है आपको उसको अलग करना था, तो ये तो आपको आता ही है। उसके बाद आपको जो लास्ट वीक आपने वेजिटेबल्स खाए हैं उसके नेम लिखने थे, और फिर हमने अपोजिट तो कर ही लिए। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके पहले ये आपको जो स्पेलिंग हो वेजिटेबल्स की वो फाइंड करना है, देन ज़मीन के अंदर जो होते हैं वो वेजिटेबल्स किए और क्वेश्चन आंसर किए। सो नाउ यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक। जो भी क्वेश्चन आंसर टेक्स्ट बुक में फिलअप होते हो वो आपको टेक्स्ट बुक में फिलअप करना है और बाकी आपको नोटबुक में लिखना है। ओके, so in next lecture we will go with our workbook, so everyone please bring workbook. Okay students, so and one more thing, please subscribe our new channel. Its name is Best English School Naroda Online. This is for your online class, so everyone please subscribe it, don't forget. So we will meet you in next lecture. Okay, bye, take care, have a nice day.